Hello, good morning to all of you. Hope I am audible. Good morning, sir. Good morning. Yes. Okay, myself Manish Thakur. I am the assistant professor in mechanical engineering department, right? And I am going to teach you today the forging process, right? Uh, it is also a metal forming process, right? What is forging? Have you heard about the name forging? Anyone? forging क्या होता है? आप लोग कोई सुने हो नाम? Hello. Yes, sir. Am I audible to all of you or not? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Please, what do you mean by forging operation? Right? Forging operations आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, right? ठीक है, तो forging operations क्या होता है? Basically, it is a process of deforming, right? It is a process of deforming the work material under the repeated blow of hammer or die, right? ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि आप इस पे क्या करोगे? आप डिफॉर्म मेटल को क्या करोगे? डिफॉर्म कराओगे under the action of die or using the hammer, right? ठीक है, using the hammer you are going to deform the die in the shape of a desired product. Am I right here? This is known as forging. Now, how will you define the term forging? Forging is the process of deforming the work material under the repeated blow of hammer or die, right? Hammer or die. It is one of the most oldest process, right? It is like the casting. It is also the most most oldest process, right? ठीक है, तो ये कास्टिंग की तरह ही क्या है? सबसे ओल्डेस्ट प्रोसेस होता है, राइट? ठीक है, so how will you define the term, right? It is the deformation process in which the work material is compressed between the two dies or blow of hammer. You are going to deform the material into a shape which is to be desired, right? ठीक है, so here two types of load will be there, right? One is the impact load and another may be the gradual load. impact load मतलब, impact load कहने का मतलब क्या होता है? sudden applied load, that is known as impact load. अचानक से लगाया गया जो फोर्स होता है, that is known as impact load, right? and gradual load, right? ठीक है, ग्रेजुअली जिसको क्या करते हैं? लोड को बढ़ाते रहते हैं, लोड का मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? जीरो से लेकर सम मैग्नीट्यूड तक क्या करते हैं? उसको बढ़ाते रहते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, राइट? ठीक है, so this gradually applied load is applied through a hydraulic device. Clear to everyone? Clear to everyone? Yes, Is it sir. clear or not? Yes, sir. Okay, ठीक है, तो next क्या है? It is used to make the variety of high strength component, ठीक है, for automotive, aerospace and other applications, right? The component may be what? Engine crankshaft. Engine crankshaft is manufactured by using the forging process, right? Also, forging is used to manufacture the connecting rod and gear, aircraft structural component as well as jet engine turbine parts, right? These all are may be manufactured by using the forging process, right? Okay, basically there may be classifications of forging process, right? According to the temperature, we have classified the forging process as cold work process, warm work process and hot work process, right? Okay, the cold forging process, warm forging process as well as hot forging process, right? Already I have discussed about what do you mean by the cold working, warm working and hot working. Have you remembered or not? Have you remembered or not? What is the cold working process and hot working process? What is the difference between two and these two, and what are the advantage and disadvantage of that? Okay, very good. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, राइट? ओके, ठीक है, तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर द forging is divided also into three categories. First
किस टेम्परेचर पे लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे लेते हैं, राइट। ठीक है, वार्म जो फॉर्जिंग होते हैं 0.3 टाइम्स ऑफ Tm, that is the melting point temperature. And hot working operations किस टेम्परेचर पे लेंगे, 0.2, this is the range for hot working operations, right? ठीक है, okay. Further, the forging process is classified on the basis of presses or force, right? ठीक है, the impact load may be a different type of load, that load, right? ठीक है, impact load applies through forging hammer. ठीक है, hammer मतलब क्या होता है, हथौड़ा। ठीक है, impact load कैसे आप अप्लाई करोगे, forging hammer के थ्रू, राइट। ठीक है, another is gradual pressure or gradual load. How will you apply? By using the hydraulic machines, ठीक है, या forging press और hydraulic machine के थ्रू आप क्या करोगे, gradual load अप्लाई करोगे। Clear to everyone? ठीक है, next is also classified according to the type of forming. ठीक है, so this may be open die forming, impression die forming, right? What is this? We will discuss in the next slide. We are going to discuss in the slide, right? ठीक है, so look at this slide here. This is the figure here. This is the figure here, right, in which there are two dies. This is the upper die, right? This is the upper die, right? Lower die. In between these two, we are going to place a piece. Here, in between these two dies, we are going to place the work piece. Clear? ठीक है, तो यहाँ पे open die forging है. This is the open die forging, right? In which we can see here that the workpiece is compressed between the two flatness or the workpiece is compressed between the two dies or flatness, right? Thus the allowing the metal to flow without any restrictions in the sideward directions, right? ठीक है, यहाँ पे जो है मेटल किधर फ्लो करेगा, यदि आप कंप्रेस करोगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द फोर्स हियर, राइट। ठीक है, ऑन अपर, दिस इज द स्टेशनरी डाई, लोअर डाई इज एट स्टेशनरी पोजीशन, राइट। ठीक है, एंड अपर डाई क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। अपर डाई इज मूविंग, राइट, मूविंग वर्टिकली, राइट। ठीक है, थ्रू विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द फोर्स ऑन द वर्क पीस, राइट। ठीक है, while compression process, what will happen, the height, this height will be decreased, height of the workpiece will be decreased, and according to the volumetric consistency, what will be increased there, diameter will be increased. The final ये हो जाएगा, final shape आपका क्या हो जाएगा, final shape will be like this. ठीक है, final shape will be like this. Is it okay or not? Is it okay or not? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, कंप्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, हाइट में चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें भी द फाइनल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और वर्क पीस, राइट। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन डाई फॉर्जिंग क्या कहता है, द वर्क पीस इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू flatness or dies, right, two flat die, right, thus allowing the metal to flow without any restrictions in the sideward directions, right, relative to the die surface, right। ठीक है, तो मेटल का फ्लो किधर होगा, साइडवर्ड डायरेक्शंस की तरफ होगा। क्लियर, व्हाट इज ओपन डाई फॉर्जिंग, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes. Yes. Okay, next is impression die forging, right, next is impression die forging, right। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या बनाया गया है हमने, एक यहाँ पे भी क्या है, एक लोअर डाई है एंड अपर डाई है, राइट। अपर डाई के थ्रू हम क्या करते हैं, लोअर डाई क्या है, स्टेशनरी पोजीशंस पे है, लोअर डाई इज इन द स्टेशनरी कंडीशंस, राइट, एंड अपर डाई इज मूविंग टुवर्ड्स up and down, right, moving about vertical, right, vertically it is moving, right, through which we can provide the force on the workpiece, right, workpiece is kept in between these two dies। ठीक है, दो डाई के बीच में,
ठीक है। एंड आपको क्या करना है कि जो भी इंप्रेशन चाहिए वर्क पीस पे, जो भी इंप्रेशन चाहिए, जो भी डिजाइन चाहिए, दैट डिजाइन इज एम्बेडेड इनटू डाई, राइट। ठीक है, ये डाई और ये डाई में क्या है, ये अपर डाई एंड लोअर डाई में क्या है, डिजाइन क्या किया गया है, उसमें उखेरा गया है। ठीक है, डिजाइन उसमें क्या किया गया है, उसमें इंप्रेशन दिया गया है, राइट। ठीक है, पैटर्न बना, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? ठीक है, सर ठीक है। बोल रहे थे डाई में पैटर्न बनाया हुआ है ना, डाई में इंप्रेशन रहता है, सपोज सपोज कि आपको बोल जो रहे भी थे शेप सर डाई में तो पैटर्न बना हुआ है ना सर। क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा फ्रीक्वेंस। अच्छा देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इंप्रेशन डाई क्या है, इंप्रेशन कहने का मतलब क्या हो गया, इंप्रेशन इज इनसाइड द डाई, डाई में क्या है, इंप्रेशन है। ठीक है, तो इन impression die forging the die surface contains a shape, right। die surface क्या कर रहा है, die surface contain a shape that is given to the workpiece during the compression, clear or not, clear or not। die surface प्रॉब्लम हो रहा है। die surface contain a shape that is given to the workpiece during the compression, thus restricting the metal flow significantly, right। But you can see here there is some metal flow in sideward directions, right। There will be some metal flow is happening in the sideward directions, right। ठीक है, so this is the some extra deformed material outside the die impression which is called flash। ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल क्या किया, फ्लो कर गया, that is known as flash। ठीक है, this will be trimmed after after complete forging process, right। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास ये शेप का ही हमें डाई चाहिए, राइट, ये शेप का ही हमें ये ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। देखो ध्यान से देखो, ये शेप का ही हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, किस टाइप का, इस टाइप का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मटेरियल आ गया, राइट, ड्यू टू द साइडवार्ड फ्लो ऑफ मेटल, दैट इज द नोन एज फ्लैश। तो इस फ्लैश को क्या करेंगे हम, इस फ्लैश को क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा रिमूव करना पड़ेगा। दिस एक्स्ट्रा मटेरियल दैट इज फ्लैश इज टू बी removed or trimmed after the completion of forging process, right। So this is known as impression die forging, clear, is the flashless forging, right। तो फ्लैशलेस फोर्जिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो फ्लैश हमने अचीव किया, द फ्लैश विल नॉट बी अचीव्ड हियर, क्लियर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फ्लैशलेस फोर्जिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जाता है, द वर्क पीस इज फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन द डाई, वर्क पीस क्या किया हमने, ये क्लोज डाई है, राइट, दिस इज द डाई, दिस इज द स्टेशनरी डाई। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेशनरी डाई, राइट, एंड दिस इज द मूवेबल डाई, राइट। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्लियर टू एवरीवन। ठीक नहीं है, सर, दैट और इज वो आल्सो बताइए, नोन एज, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। सर हेलो, फ्लैशिंग वाला बताइए। फ्लैशिंग। ठीक है, फ्लैश देखो, फ्लैश इज नथिंग, इट इज द एक्स्ट्रा मटेरियल। ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल which is flow sideward in the sideward directions। ठीक है, sideward directions पे एक्स्ट्रा जो मटेरियल फ्लो कर गया उसको बोलते हैं फ्लैश। ठीक है, तो ये जो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट हमें ये हमें निकालना है ना, ये आपका एक्स्ट्रा ये आपका सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया, दिस इज द एक्स्ट्रा मटेरियल, राइट, दिस इज नोन एज फ्लैश है। ठीक है, तो आफ्टर सॉरी after completion of the forging process what will you have to do, you have to trim these things। ठीक है, ये इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा to obtain the object or our product। clear to everyone, yes or no। फ्लैशलेस फिर से समझा दीजिए सर, मैं फ्लैशलेस समझ, किस चीज को, फ्लैशलेस फॉर्जिंग। फ्लैशलेस, राइट।
हाँ, तो फ्लैशलेस की बात करते हैं आप। तो फ्लैशलेस कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फ्लैश यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। जो यहाँ पे फ्लैश आ रहा था इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग में, तो यहाँ पे फ्लैश नहीं होगा, राइट। ठीक है, तो ओपन डाई फॉर्जिंग के केस में, सॉरी फ्लैशलेस के केस में क्या होता है, द वर्क पीस इज फुली रेस्ट्रिक्टेड विद इन द डाई। ठीक है, यहाँ पे ये दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्क पीस है, राइट, कीप्ड इन द डाई कैविटी, राइट। डाई कैविटी में ये क्या कर रहा है, इसको प्लेस किया है हमने, राइट। ठीक है, अब जो भी इंप्रेशन चाहिए हमें, तो पंच के थ्रू हम इंप्रेशन ऑब्जेक्ट पे ले सकते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस विद इन द डाई, दैट इज व्हाई देयर विल नो एनी flash will be produced here. Extra material cannot be flow in the sideward directions. Sideward directions में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा लो, यहाँ पे क्या है, दीवार लगा दिए हो आप। ठीक है, ये क्या है, डाई का दीवार है, वाल है, राइट। तो यहाँ पे मटेरियल क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दिस केस the amount of initial workpiece used must be controlled accurately so that the die so that it matches the volume of the die cavity. तो जो भी आपका जो मटेरियल था, वर्क मटेरियल था, या जो भी वर्क पीस था, that is completely converted into the exact shape and size of the product. ठीक है, जो डाई कैविटी के बराबर होगा, जिसका वॉल्यूम जो होगा, इनिशियल जो वर्क पीस का वॉल्यूम होगा, दैट वॉल्यूम विल बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डाई कैविटी। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट? यस सर। तीनों फिगर समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है तो नहीं, डाउट नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और डाउट है तो पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपन डाई फॉर्जिंग, राइट। नेक्स्ट इज ओपन डाई फॉर्जिंग की हम बात करते हैं। जो पहला वाला था, ये फर्स्ट वाला था ओपन डाई फॉर्जिंग, राइट, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? इट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट इज दिस? Open die forging is what? It is the simplest example of compression of billet between two flat die halves, which is like the compression test. Compression test में क्या करते हैं? Compression test आप लोग किए हो, टेंसाइल टेस्ट एंड compression test by using the UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। यदि मान लो कि ये आपका जो टेस्टिंग है, आपका जो ये है बाड़ है, जो स्पेसिमेन है आपका, ये डाल देते हो। ठीक है, तो टेंसाइल टेस्ट में क्या करते हैं, लोड ऊपर लगाते हैं, इधर भी लोड ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या टेंशन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स किधर लगा रहे हैं, फोर्स किधर लगा रहे हैं, अपोजिट टू द टेंशन। ठीक है, देयर विल बी ए कंप्रेशन ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, तो ये सिमिलर कंडीशन है ना कंप्रेशन टेस्ट का। इज इट ओके और नॉट? Is it okay or not? Is it okay or not? Yes or no? No sir. लोग और सब कहाँ हो जी? कोई नहीं कुछ बोल रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर मेरा। Yes sir. थोड़ा देखो टावर जहाँ, वहां पे आ जाओ। सर पेड़ ठीक के है, हाँ देखो कहीं पे जगह पकड़ लो। ठीक है, तो अब इसका देखो, इसमें क्या कहता है कि ओपन डाई फॉर्जिंग में क्या होता है, वी आर गोइंग टू कीप द material, work material in between two dies. ठीक है, and now we are going to compress the material, and this term is known as offsetting. ठीक है, this is also known as offsetting or offset forging. ठीक है, open die forging को क्या बोलते हैं, offsetting और offset forging भी कहते हैं। क्लियर, याद रहेगा। offsetting is what? It is nothing, it is the open die forging process, or offset forging is the same, right, in which we are going to, यदि आप compress करोगे तो what will happen here, when we are going to compress these things, so what will happen, there will be an increase in the diameter and decrease in the height. Is it clear or not? Is it clear or not? Yes sir. Yes sir. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है, हाइट डिक्रीजेस एंड डायमीटर इंक्रीजेस। यहाँ पे देखो पोजीशन 1 था, ये पोजीशन 2 हो गया एंड पोजीशन 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट h0 था, यहाँ पे हाइट कितना हो गया, hf हो गया। ठीक है,
यहाँ पे हाइट h नॉट था, यहाँ पे हाइट hf हो गया, डायमीटर यहाँ पे d नॉट था, यहाँ पे डायमीटर df हो गया, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे आइडियल कंडीशंस की बात करते हैं, वेयर देयर इज नो फ्रिक्शंस बिटवीन द बिलेट एंड डाई सरफेस। देखो ये जो बिलेट है, दिस इज द बिलेट एंड दिस इज द डाई। ठीक है, तो ये दोनों के जो सरफेस थे यहाँ पे, दिस इज द कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए ना। एक्चुअल केस में क्या होना चाहिए, एक्चुअल केस में दोनों में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन आइडियल केस में हम क्या मानते हैं कि आइडियल कंडीशंस की हम बात करते हैं, तो वी आर गोइंग टू टेक द आइडियल कंडीशन, दैट इज वी आर गोइंग टू इग्नोर द फ्रिक्शनल फोर्स हियर, राइट। वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन इन आइडियल कंडीशन, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द फ्रिक्शनल फोर्स हियर। ठीक है, ठीक है, तो इन यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगा क्या होगा, इन होमोजेनियस डिफॉर्मेशन होगा, राइट। दैट इज the diameter is increased uniformly throughout the height। कहने का मतलब जो है, यहाँ पे देखो इनिशियल कंडीशन में ये जो आपका पोजीशन 2 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डायमेंशन आ गया, हाइट कम हो गया, तो यहाँ जो डायमीटर होगा d, यहाँ भी डायमीटर सेम होगा d। ठीक है, सिमिलरली यहाँ जो डायमीटर d होगा, यहाँ पे भी डायमीटर d होगा, मतलब कि किसी भी प्लेस पे आप डायमीटर लोगे, किसी भी सेक्शन पे, तो डायमीटर विल बी सेम। ठीक है, because of the ideal condition, no frictional force has been taken here। लेकिन यदि फ्रिक्शनल फोर्स हम लेते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लोगे, फ्रिक्शनल यदि फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ पे कंसीडर करिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो 3 बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लोगे, इस पोजीशन पे फ्रिक्शनल फोर्स के सरफेस पे, डाई एंड बिलेट के सरफेस पे, तो क्या होगा कि मेटल क्या करेगा, कंप्रेशन में क्या करेगा, मेटल इधर फ्लो करने की कोशिश करेगा ना, मेटल इधर फ्लो करने की कोशिश करेगा ना, यस और नो। Yes. ओके, Yes. मेटल इधर फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन, मूवमेंट का कितना क्या होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इस सरफेस पे ज्यादा होगा, इस सरफेस पे ज्यादा होगा, और कम कहाँ होगा, इस सरफेस पे, यहाँ पे कम होगा, इस पोजीशन पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो आप उस समय क्या, उस समय कहाँ किस पे टाइप का शेप आएगा, ज्यादा वो सर फिर से बताइए ना सर। देखो, हेलो, हाँ रौनक, ठीक है, तो देखो सर यहाँ पे कहाँ क्या पे होगा, ज्यादा यहाँ होगा सर? कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, कांटेक्ट सरफेस पे होगा ना, कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा ना, एम आई राइट और ये नॉट, कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। सिमिलरली बॉटम सेक्शन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा और इस पोजीशन पे कम होता जाएगा, तो फाइनल जो शेप मेरे पास आ जाएगा, इस टाइप का शेप आ जाएगा, राइट। ठीक है, इस टाइप का शेप आ जाएगा, राइट। दिस इज द, दिस विल बी द शेप हियर। ठीक है, यदि फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, तो आप जब कंप्रेशन करोगे दो डाई के बीच में, तो इस टाइप का शेप आ जाएगा, राइट। दिस इज द डाई 1 एंड दिस इज द डाई 2, दैट इज द फिक्स डाई, राइट। ठीक है, तो इस टाइप का शेप आ जाएगा, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइडियल कंडीशंस ले रहे हैं, जस्ट वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या रहेगा, डायमीटर यहाँ जो है वो डायमीटर यहाँ रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर कहाँ ज्यादा हो जाएगा जी बताइए, यहाँ पे डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे बीच में डायमीटर ज्यादा हो जाएगा, राइट। डायमीटर डी विल बी, यदि मान लो कि यहाँ पे D1 है, तो D1 विल बी, D will be greater than D1। Clear to everyone or not? Clear to everyone or not? Concept clear है? यस सर। ओके, ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने क्या बताया था, लास्ट सर टाइम बताया था, क्या है? हेलो, ठीक है, अभी लास्ट टाइम में हम बताया था क्या कि स्ट्रेन, सर हाउ द स्ट्रेन विल बी कैलकुलेटेड। हाँ, कौन कुछ बोल रहा है क्या, सर फिर से एक बार बताइए ना सर, ओके, फ्रिक्शन जब कंसीडर करें तब से।
यस सर, उस अभी कंडीशन समझ में नहीं आया Ideal फ्रिक्शन के बारे में सर, आइडियल कंडीशन। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए ना। अभी रोशन अभी आइडियल कंडीशन की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बाद में बताएंगे। अभी जितना समझो समझो, ठीक है, बाद बाकी अभी बताएंगे, ठीक है। अभी देखो हमने क्या किया, आइडियल कंडीशंस की बात किए, तो नो फ्रिक्शनल इज कंसीडर, नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दिस सरफेस, कांटेक्ट सरफेस। समझ में आया अभी तक? अभी तक क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं किस चीज का, अब बात करते हैं हम आपका स्ट्रेन का। तो याद करो, स्ट्रेन जो निकालने की हम बात करते थे, ट्रू स्ट्रेन, राइट, इंटीग्रेट करते थे dl अपॉन l, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता था, l इनिशियल लेंथ क्या है l नॉट, और फाइनल लेंथ lf है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा l h नॉट बटा hf, दैट विल बी पॉजिटिव। यदि नेगेटिव वैल्यू लोगे, यदि डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ln l, सॉरी यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जो भी है नेगेटिव लोगे तो एल एफ डिवाइडिंग बाई एल एन आ जाएगा, एल नॉट आ जाएगा, राइट। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द ट्रू स्ट्रेन, राइट, ठीक है। you have to calculate the true strain. Whenever you are asked to calculate true strain, you have to use this formula, right? This formula can be used to calculate the true strain here, right? ठीक है। तो अब बात करते हैं फोर्स की। how the force can be calculated, what is the force here? That is the forging force. The forging force is nothing, it is F is equal to sigma flow strength into area, फाइनल एरिया। किस कौन सा एरिया लेंगे, फाइनल एरिया। यहाँ पे क्या डायमीटर मिल गया, फाइनल डायमीटर मिल गया, राइट। तो AF, how the F will be calculated, F will be equal to pi by 4 into DF whole square, that is the AF square, ठीक है। and sigma flow will be given here, sigma is the flow stress of the material. Clear to everyone? ये क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा, you have to use this formula to find the unknown things, right? Clear or not? Yes or no? Please tell me yes or no, sir. Yes. ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ओपन डाई फॉर्जिंग में, हम बात करते हैं ओपन डाई फॉर्जिंग में। मान लो कि ड्रॉप हैमर की हम बात करते हैं। हैमर क्या किया हमने, डार्क मटेरियल पे ड्रॉप किया, ठीक है। जैसे आप हथौड़ा मारते हो, ठीक है, मेटल को डिफॉर्म कराने के लिए क्या करते हैं, आप हथौड़ा मारते हो तो सम हाइट से उसको क्या करते हो, कुछ हाइट से उसको ड्रॉप करते हो मेटल पीस पे या वर्क मटेरियल पे, क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, ठीक है। तो सपोज दिस इज द हैमर, दिस इज डाई 1, दिस इज डाई है, यहाँ पे क्या है, मूवेबल डाई है, एंड ये है डाई, जो ये डाई है नीचे वाला डाई, दिस इज द स्टेशनरी डाई, ठीक है। तो ये सम हाइट पे लिए हमने, कितना हाइट ले, एच हाइट पे लिया, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, पटक देते हैं। पटक देने का मतलब ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनल शेप मेरा कितना आ गया, देखो ये क्या हो गया, इसका डायमीटर क्या हो गया, ये डिफॉर्मेशन के बाद डायमीटर डीएफ हो गया, और हाइट क्या हो गया, हाइट कम हो गया। क्लियर, ठीक है। तो अब इसके पास जो डायमीटर, सॉरी डाई जो है, जो हाइट एच पे है, उसके पास कितना एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। that potential energy can be calculated as potential energy is equal to mg into h, where mg is what, mg is the weight of the hammer. Clear to everyone? Yes or no? Yes or no? आवाज ही नहीं आ रहा ठीक से सर। Yes, हेलो, sir. ओके, टावर में जाओ, जिसका आवाज नहीं आ रहा टावर में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg into h, राइट, ठीक है। तो mgh, दिस इज व्हाट, दिस इज द एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg into h, एंड दैट इज गिवन बाय एनर्जी। कैसे अब कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चेंज इन यहाँ पे कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एच नॉट माइनस एच एफ, ठीक है। यहाँ तक कितना था, यहाँ तक कितना था, एच नॉट था यहाँ तक, राइट, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच नॉट माइनस एच एफ विल बी द डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी आल्सो द एनर्जी, ठीक है। mgh is equal to f into h naught minus hf. Can be written or not? Can be written or not? Yes, sir. Okay, very good. Now, the
forging force already I have discussed. Forging force is equal to sigma f flow stress into area, final area, right? ठीक है. Now strain also I have discussed. Strain is equal to true strain is equal to ln h naught dividing by hf. ठीक है. This is the formula to calculate the true strain. ठीक है. And now we have to calculate. Suppose we are going to calculate the percentage change in diameter. How much the percentage has been changed in the diameter. ठीक है. तो क्या करेंगे? डायमीटर क्या है? पहले डायमीटर फाइनल डायमीटर कितना है मेरा? df minus initial diameter dividing by final diameter into 100. This will gives you the percentage change in the diameter. Clear to everyone? Clear to everyone? Yes or no? Last line is similar. Yes or no? P Please is equal tell to me. mgh. Sir, हाँ बोलो. last line sir, P is equal to mgh is equal to f h0 minus hf. ये line थोड़ा समझाइए. देखो एनर्जी डेल्टा एनर्जी क्या होता है जी? डेल्टा एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? फोर्स इनटू डीएस होता है. Yes sir. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू एच नॉट माइनस एच एफ. ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? एच नॉट क्या था? पहले इनिशियल कंडीशंस में एच नॉट था, फाइनल कंडीशंस में क्या हो गया? देखो यहाँ पे हो गया, दिस इज द एच एफ हो गया. तो कितना डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक? दिस इज द एच नॉट माइनस एच एफ. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हियर. यस और नो? ठीक है. तो ये जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ मेरे पास, ये क्या हुआ? इट इज कंज्यूम्ड in displacing the metal from H naught height to HF, or compressing. This energy is utilized in compressing the material from H naught height to HF. Clear? 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 Yes sir. Yes. Okay. ठीक है. तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज फ्लूइडिंग क्या है? FULL फ्लूइडिंग क्या है? इट इज ए फॉर्जिंग प्रोसेस हैविंग होमोजेनियस डिफॉर्मेशन. ठीक है. होमोजेनियस डिफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या हमने किया? आइडियल कंडीशंस में जब हमने लिया तो उस चीज को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिंग बोलते हैं, राइट? आइडियल कंडीशंस मतलब जहां पे हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया, तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशंस को क्या बोलेंगे? फ्लूइडिंग ऑपरेशंस, राइट? फ्लूइडिंग और ओपन डाई फॉर्जिंग. ओपन डाई फॉर्जिंग में भी दो तरीका का होता है, राइट? ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अभी जब हमने बताया, कल डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है. तो आज के लिए देख लो, यहाँ पे हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं? कंसीडर. यहाँ पे हम फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ का जो डायमीटर है, यहाँ का डायमीटर यहाँ का डायमीटर के बराबर है. यहाँ का डायमीटर यहाँ का डायमीटर के बराबर है कि नहीं है? बताओ आप लोग. नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं. तो दिस इज नोन एज बर्लिंग इफेक्ट. ये क्या होता है? बर्लिंग इफेक्ट होता है. ठीक है. होमोजेनियस डिफॉर्मेशन इज नॉट हैपनिंग. ठीक है. क्लियर? ओके. तो दिस टाइम विल बी डिस्कस्ड टुमारो, एंड वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू हाउ the forces can be calculated. Just force को क्या करेंगे? एक k फैक्टर से गुना कर देंगे, force can be calculated है, राइट? ठीक है. और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, राइट? ठीक है. तो यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर है? यदि नहीं क्लियर है तो आप लोग पूछो. टाइम भी हो गया है. और आप लोग